Hmm. So today we will continue with CSS. In last class we have seen that what is why CSS have been developed as a separate language, you can say, uh, and what are the basic constructs of CSS we have seen. Today we will continue with that. In previous class we have discussed that CSS, when you want to define or you want to add a CSS for a particular page, you need to follow the following syntax. That is, first you need to define the selector. That means on what kind of elements or what set of elements your styling will be applied, and then within the curly braces you will give the declaration related to the properties that you are going to assign to those selected HTML elements. Hmm? So you can specify the aesthetic part with the help of two things or with the help of a pair. First you need to specify the property, after then you need to put a colon, and after that colon you need to specify the value of that property. Okay, for example, suppose you like to have that particular heading, let's say h1 kind of heading should be shown in blue color, then you will write color colon blue, and font size आप suppose set करना चाहते हैं, that should be 12 px. So you can write font size, that is the name of the property, colon 12 px, that is the value. So आप चाहते हैं कि font का size 12 pixel हो. Okay, and there are some other properties that you can also set. We will see some of those properties uh, in the following classes, and rest of the properties I will not discuss all those properties that you can put specify for designing your website, aesthetic part of putting designing your website or specifying the aesthetic part of the website. Okay. ah so we have seen that in previous class that whenever you want to provide the styling information, you can provide styling information with the help of link tag. So there is one common way that you put all the styling information, that is all the information, in a separate file with the extension .css. So so suppose if you are having different kind of HTML elements in your web page, like header, sorry, like heading, and then you have certain images and paragraphs, so you can specify their styling information in a separate file. Let's say that file name is mystyle.css. so आप generally वो file को css extension के साथ सेव करते हैं. ध्यान रखना है, whenever you are providing the styling information in css file, you do not need to add any HTML tag in that file. Okay, that you need to be careful about that. And then save that file with css extension, and then you can link that file into your web page with the help of link tag. So in the link tag, that tag will be specified within the body of the web page. So you will write link rel, that means relationship, what kind of file is this or what is the relationship with this web page. So relationship से आप बताएंगे कि this is a style sheet file. So देन href से आप उस फाइल का एड्रेस आप प्रोवाइड कर देंगे लिंक टैग में. सो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक टैग, or you can say that this link tag will be able to add this css file or combined with the css file with your web page. Okay, and your there is another way. If you do not want to use the link tag, you can specify the style tag, or you can specify the css information within the style tag that should be put into the header. ओके, स्टाइल टैग आप हेडर में पुट करेंगे इन द वेब पेज के हेडर में, और वहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे लाइक दैट. फॉर एग्जांपल दिस स्टाइल टैग, इन दिस स्टाइल टैग वी आर प्रोवाइडिंग CSS information फॉर ए पैराग्राफ. P represents here पैराग्राफ, एंड ब्रैकेट में आप पूरी प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे. दैट मीन्स फॉन्ट साइज विल बी 32 px. सो जो भी पैराग्राफ होगा उसका फॉन्ट साइज 32 पिक्सल होगा. कलर विल बी रेड एंड टेक्स्ट अलाइन, दैट मीन्स अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विल बी सेंटर.
Okay, so this is the way you can specify CSS. Now let's talk about the CSS selectors. Okay, so you can specify CSS selectors in the various ways. So what is the meaning of CSS selector? Selector specifies actually what kind of elements or what are the elements on which that particular CSS will be applied. So you can specify CSS selector in a variety of way. Okay, so these are the following five categories in or the following five methods in which you can specify the CSS selectors. Okay, so let's discuss them one by one. I will come back to the W3 school date website, so that I will already the web pages are already there, and the styling information have been put within the web pages. That means good examples are there, so I will demonstrate those examples, and I will explain how the CSS is working there and how CSS selectors are working. Okay, so let me switch to that. Okay, so this is one example. You can see, are you able to see this, or I can zoom it? Let me make it large. So this is the example. So suppose you want to specify some CSS information within a file, so you will write this in this way. You can see that there is no HTML tag. Okay, so let's say suppose you want that your body should have some background color, and that background color you need to specify. That suppose you want that background color of the web page should be light blue, so you have specified there. Okay, then you need to put the semicolon in the end. So your body's the web page body will have background color light blue. Then suppose your web page also going to have some headings. Let's say H1 kind of heading you are going to have. Then you specify that heading will be of color white and alignment should be center. Similarly, you specify, let's say that the paragraph your web page will have the uh, following aesthetic information. That font family will be Vardhana and font size will be 20 pixels. So let's see the example how it will work. So now let's see the complete code. Since we are providing this CSS file within the web page, CSS information within the web page, so you have to put all CSS in the style file. Okay, you should remember that if we are putting style tag, it should be into the head part of the web page. So you can see that here you are having web page and your style information is within the head tag and your whole information is there. Okay, and now whenever you will add any so you have specified that header should be with this property and a paragraph should be of this property. Okay, and body's background color be light blue. So you can see that background color of the body have become light blue. You can make it red also, or you can specify any other color. And now I have specified this when all the paragraphs in this web page will be having these properties, these aesthetic properties. Font family will be this Vardhana and font size will be 20 pixels. So now you can see that here this is a paragraph. So the text within this paragraph will be displayed with the properties, these properties. Okay, so font size will be 20 pixel. If you want to increase font size, you can make it, let's say, 30, and let's see the impact. Okay, font size has been increased, and suppose you want the background with red color, you can change it to red. Okay, or if you want to make it aqua, you can make it aqua. Okay, similarly for the heading, you can change the color of the heading. Let's say heading color I want that it should be displayed in red, then it will be red. Text alignment आप specify कर सकते हैं, left, right, center, whatever you would like to have. Okay, so you can see that there is one way कि आप style information style tag में head part में specify कर देते हैं. Okay, now here you can see that this part is called selector. So we are specifying
that in this style information that selector is paragraph. So that means this styling information will be applicable to all the paragraphs. Okay, similarly this information will be applicable to all h1 headings. ओके एंड दिस इज द बॉडी. तो बॉडी तो एक ही होती है तो कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हियर you are specifying selectors with some property some way in some way. So we will see that how we are doing that or what is this called. So let me move ahead with some more examples. We have already seen this CSS selector. Okay, so first is CSS element selector. So first kind of selector you can have is CSS element selector. So you have seen that example of CSS element selector. So in the CSS element selector, what you do, you specify the type of element on which that particular CSS styling information will be applied. So for example, suppose you write P here. So you are actually saying that this kind of element will be of like that. So this is an example of CSS element selector. So यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये जो स्टाइलिंग है ये इस टाइप के एलिमेंट पर अप्लाई होना चाहिए. और ये P क्या रिप्रेजेंट करता है? P रिप्रेजेंट्स ए पैराग्राफ एलिमेंट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ CSS एलिमेंट सेलेक्टर. एलिमेंट सेलेक्टर क्यों कह रहे हैं हम इसे? बिकॉज you are specifying on which element this CSS information will be applicable. Okay, so this is an example of element selector. So जब भी आपको किसी particular element पर स्टाइलिंग करनी है तो आप एलिमेंट सेलेक्टर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. और एलिमेंट स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है कि आप जो करली ब्रैकेट्स है उससे पहले उस एलिमेंट का नाम लिख दीजिए. सिमिलरली आप यहाँ पर अगर मान लीजिए स्टाइलिंग एक हेडिंग के लिए स्पेसिफाई करना चाहते थे, H1 काइंड ऑफ हेडिंग, तो आप H1 लिख सकते हैं. ठीक है, और H2 काइंड ऑफ हेडिंग के लिए लिखना चाहते हैं तो H2 लिख सकते हैं. सो इस तरीके से जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो हम कह रहे हैं यू सी दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ सेलेक्टर इज CSS एलिमेंट सेलेक्टर. सो जब आप इस तरीके से स्टाइलिंग करेंगे तो दिस स्टाइलिंग विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एलिमेंट्स. This is one way. There is another way. Sometimes what happens, you may like to have a specific styling for a specific element. Okay, so अगर आपको एक वेब पेज में एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, so there is one way that you can specify ID selector. So ID selector स्पेसिफाई कैसे करेंगे? आपको हैश का साइन लिखना है और उस एलिमेंट की ID बता देनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि वेब पेज में जो एलिमेंट्स होते हैं HTML टैग्स और अदर एलिमेंट्स जो हैं उनकी एक यूनिक आईडी होती है. सो दे आर हैविंग यूनिक आईडी. सो आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर वे में स्टाइल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इस तरीके से स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन दे देंगे. सो दिस काइंड ऑफ सेलेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एन ID सेलेक्टर. ओके, सो नाउ ये जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन है ये एक पर्टिकुलर ID वाले एलिमेंट पर अप्लाई होगी और उस ID का नाम आप यहाँ लिख रहे हैं. व्हाट इज द ID? यू आर स्पेसिफाइंग दैट. सो हियर पैरा 1 इज द ID ऑफ एन एलिमेंट जिस पर आप ये स्टाइलिंग करना चाहते हैं. आप क्या चाहते हैं कि एक एलिमेंट जिसका नाम ID पैरा 1 है, इट शुड हैव अलाइनमेंट सेंटर एंड कलर रेड. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. सो दिस इज द स्टाइल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आपने यहाँ पर ID वे सेलेक्टर आपने स्पेसिफाई कर दिया. दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट द एन एलिमेंट विद द ID पैरा 1 should have this styling. Okay, you have specified this in the web page, and then now you can see that you have specified two paragraphs. One paragraph is given ID para 1 and another paragraph is not giving any ID. Okay, you may give an ID or you may not give. Okay, now since you have specified CSS with the help of an ID element selector, so this CSS will be applicable to only this paragraph. That means para 1. Okay, para 1 is paragraph का नाम है. So that means this text will be shown in red and in center. So you can see that here this text is center and it is being displayed with red color. Okay, and you can see that this paragraph is not being affected. ठीक है, इस पैराग्राफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आपने जो स्पेसिफिकेशन दिया है स्टाइलिंग का वो ID बेस्ड है. आपने जो एलिमेंट को सेलेक्ट किया है
CSS लगाने के लिए वो ID बेस्ड है, so that's why only one paragraph will be affected और द पैराग्राफ का नाम है पैरा 1। ओके, अगर आप इसे हटा करके सिंपली यहाँ पर P कर देते, देन बोथ पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड, यू कैन सी दैट। ओके, then there is a kind of selector that is called class selector. So now sometimes what happens, you want that an element belonging to a particular class should have this kind of styling. So आपके वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और आपने उनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। सो लेट्स से यू डिवाइडेड ऑल द एलिमेंट्स 3 और 4 क्लासेस, तो आप अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको क्लास वाइज स्टाइलिंग करनी है तो आप क्लास सेलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लास सेलेक्टर इस्तेमाल करने के लिए पहले आप एक क्लास डिफाइन करेंगे, और क्लास डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, आप डॉट से शुरू करेंगे, डॉट और देन क्लास नेम। ठीक है, ये सेंटर का मतलब ये नहीं है कि ये टेक्स्ट सेंटर में होगा, ये ऑल दैट होगा, ये क्लास का नाम है। ठीक है, आप इसे क्लास के नाम को कुछ और भी रख सकते हैं, ABC XYZ वट। ठीक है, ओके, सो मेरा जो नेमिंग कन्वेंशन है HTML की वही फॉलो आपको करना है, HTML CSS के। सो लेट्स से क्लास का नाम आपने सेंटर लिखा और इस क्लास में प्रॉपर्टीज आपने स्पेसिफाई कर दी कि लेट्स से टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर होगा और कलर रेड होगा। ओके, नाउ एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस क्लास सेंटर जो है विल हैव दिस फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन और विल फॉलो दिस एस्थेटिक एस्पेक्ट। Let's see the example. Now you can see that in the style tag we have specified a class name is center, and the properties are these one. Okay, and then now we have specified 2 elements, h1 element and एक पैराग्राफ एलिमेंट है। h1 एलिमेंट में आपने हेडिंग लिख रखी है एंड यहाँ भी आपने ये लिख रखा है। नाउ यू कैन सी दैट क्लास इक्वल टू सेंटर। ओके, सो नाउ आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को आपको क्लास असाइन करना पड़ेगी। ओके, जैसे ही आपने लिखा क्लास इक्वल टू सेंटर, इसका मतलब सेंटर नाम की जो स्टाइलिंग है, जो क्लास है, उसकी स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ इस हेडिंग पर अप्लाई हो जाएगी और वो क्या है, सेंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बोथ नेम्स आर मैचिंग देयर। ओके, लेट्स से आपने इसका नाम सेंटर की जगह पे लेट्स से माई क्लास कर दिया, माई क्लास, तो आपको यहाँ भी माई क्लास करना पड़ेगा CLS। ठीक है, सो आपको एक्चुअली इस एलिमेंट को एक क्लास असाइन करना पड़ेगी और क्लास असाइन करने का तरीका ये होता है। लेट मी रिमूव इट। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट दिस इंफॉर्मेशन और दिस स्टाइलिंग इज ओनली एप्लीकेबल टू दिस पार्ट और दिस एलिमेंट। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, it can be a heading, it can be a sorry h1 h2 h kind of any kind of heading, it can be a div हो सकता है, it can be a image, it can be a paragraph और it can be any other kind of element। ओके, लेकिन आपको अगर आपको ये वाली स्टाइलिंग लगानी है तो उसे क्लास असाइन करना पड़ेगी आपको इस तरीके से, क्लास प्रॉपर्टी से। ओके, सो लेट मी चेंज इट टू दिस वन ऑल्सो, यहाँ भी लगा देते हैं ये प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नाउ बोथ आर हैविंग सेम स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एक क्लास नाम बताइए और अब इन एलिमेंट्स को जिस क्लास के थ्रू स्टाइलिंग करनी है वो क्लास उनको असाइन कर दीजिए। सो दिस इज ऑल्सो ए वे दैट यू यूज फॉर स्टाइलिंग योर एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एलिमेंट जो एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहा है, और अब बिलोंग कराने का मेथड क्या है, ये जैसे h1 एलिमेंट जो है ना माई क्लास को बिलोंग कर रहा है, P एलिमेंट भी माई क्लास को बिलोंग कर रहा है। अगर आप एक और पैराग्राफ एलिमेंट बनाते हैं, वो अगर इस क्लास का मेंबर नहीं है तो उन पर ये स्टाइलिंग नहीं लगेगी, केवल ये स्टाइलिंग एप्लीकेबल होगी ऑन दोज एलिमेंट्स दैट आर बिलोंगिंग टू दिस क्लास। जो इस क्लास को बिलोंग नहीं कर रहे हैं उन पर नहीं होगी। और इस तरीके से आप मल्टीपल क्लास डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट क्लास में हैव डिफरेंट स्टाइलिंग। सो लेट मी चेंज इट my class 1, let me make it my class 1 and इसका कलर कर देते हैं हम ब्लू। ओके, एंड इसको असाइन कर देते हैं हम my class 1। ठीक है,
अब दोनों अलग अलग क्लास को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट जो है ना आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन स्पेसिफाई योर क्लास, और आप उन एलिमेंट्स को उन अलग अलग क्लास में डिवाइड करके भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सो यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल काइंड ऑफ स्टाइलिंग। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो पैराग्राफ हैं, यू कैन हैव टू पैराग्राफ्स विद डिफरेंट फॉर्मेटिंग। लेट मी एंड माई क्लास, ये था, इसका कलर हमने रखा था ब्लू, सो लेट मी मेक इट ब्लू। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट both are the paragraphs, but since they belongs to a different class, they are having different styling. Okay, so this is also a way that is widely used when you are doing css for your web pages. सो समटाइम्स आप जो ना ये भी बता सकते हैं कि इस क्लास से पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलिमेंट ही अफेक्ट होंगे। तो जैसे आपने लिखा पी डॉट सेंटर, सो नाउ पी डॉट सेंटर का मतलब हो गया कि अब ये जो क्लास है इट विल बी एप्लीकेबल टू ओनली पैराग्राफ्स। ठीक है, ओनली पैराग्राफ। सो आप क्लास को स्कोप को लिमिट भी कर सकते हैं। सो अब आप हेडिंग्स के ऊपर ये क्लास नहीं लगा पाएंगे। नाउ यू कैन ऑल्सो असाइन मल्टीपल क्लासेस to single one element. Let's see this example. So in this example you can see that there are two classes have been defined for paragraphs. एक large है, एक center है। class center class specify that alignment will be center and color will be red, and just a large class specifies that font size will be 300%. so font size specify करने का तरीका, एक तो आप पिक्सल में specify कर सकते हैं, दूसरा परसेंटेज। दैट मीन्स नॉर्मल जो फॉन्ट है उसका 3 टाइम्स, 3 गुना। ठीक है, तो 300%, 4 गुना चाहिए तो आपको 400% लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल से साइज ज़्यादा हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है, हमने दो तरीके के क्लासेस डिफाइन की हुई हैं पैराग्राफ्स के लिए, एंड यू कैन स्पेसिफाई और असाइन दीज क्लासेस। सो फॉर एग्जांपल योर H1, जैसे मैंने बताया था कि चूँकि आपने यहाँ पर ये एलिमेंट टाइप लगा दिया है क्लास के आगे P, so that means now this style sheet will be applicable to only paragraphs. So if you applied this style sheet to any other kind of element, it will not take any impact. Okay, it will not have any impact on that. So you can see that heading, this heading is having class center, but since this center class, this center styling class have been specified for paragraph, so this heading will not be affected as it is। आप देख सकते हैं there is no impact on this heading। and then this paragraph, you have specified this paragraph will be styled using center CSS class। so only these properties will be applicable here। okay, but now suppose that you want that this paragraph should use both of these styling information। that means center हो text एंड कलर रेड हो एंड फॉन्ट साइज 300 टाइम्स हो, सॉरी 300% हो नॉर्मल का। तो आप देख सकते हैं आपने दोनों क्लास असाइन कर दिए हैं। तो आप चाहें तो किसी भी एलिमेंट को मल्टीपल क्लास भी असाइन कर सकते हैं। दिस इज द वे। सो दोनों क्लास के एट्रीब्यूट्स इस पर अप्लाई होंगे। ओके, सो दिस इज हाउ you can assign multiple class to a single element, and that will quite work. Now there is one more selector, that is universal selector. Now sometimes what happens, you want to specify a styling that should be followed by all the elements in your HTML tag, in a web page। all HTML elements जो है ना वेब पेज में जो है वो पूरी एक कॉमन स्टाइलिंग को फॉलो करें। तो आप उसे स्टार के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो स्टार में जो कुछ भी आप स्पेसिफाई करेंगे, स्टार टेक्स्ट अलाइन इन दिस वे, सो दिस फॉर्मेट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द HTML एलिमेंट्स। यू कैन सी हियर
ठीक है। सो हमने स्पेसिफाई किया था कि अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। सो अब और जो भी एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे अपने वेब पेज में, सब पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके। सो जनरली हम ये जो स्टाइलिंग है, ये वेब पेज में जो एलिमेंट्स हैं उनको एक कॉमन कॉमन प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। Now there is one more kind of selector you can specify, that is CSS grouping selector. So see this example. Now sometimes what happens कि आप एलिमेंट्स के लिए अलग अलग भी जो है CSS स्पेसिफाई करते हो। सो फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग दैट कि H1 हेडिंग जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्प्ले होना चाहिए, H2 हेडिंग इस इन प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्प्ले होना चाहिए, एंड पैराग्राफ इन प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्प्ले होना चाहिए। एंड नाउ यू आर सीइंग दैट ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर द सेम। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, कलर रेड है, यहाँ भी H2 के लिए आप टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर बोल रहे हैं, कलर रेड बोल रहे हैं। दैट मीन्स ऑल दीज स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन हैविंग ऑल दीज स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज आर द सेम। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंबाइन ऑल दीज स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन इनटू ए सिंगल। कैसे करेंगे आप? जस्ट लाइक इन दिस वे। ठीक है। सो आप इसे ऐसे ना लिखते हुए व्हाट यू विल डू, यू विल स्पेसिफाई योर स्टाइलिंग इन दिस वे, क्योंकि सबकी कॉमन स्टाइलिंग है। H1, H2 और P तीनों की सेम स्टाइलिंग आप बताना चाह रहे हो, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं H1, H2, P एंड देन ब्रैकेट में स्टाइलिंग लिख दीजिए। ओके, डोंट फॉरगेट टू ऐड सेमीकोलन। सो नाउ H1, H2 एंड P all will have these styling information. So this is a concise way. तो इससे फ़ायदा क्या होता है? ग्रुप सेलेक्टर यूज करने से आपका CSS का कोड जो ना और कम्पैक्ट हो जाएगा। रादर देन राइटिंग इन दिस वे, you should write in this way. So your CSS code will become more compact and precise. Okay, you can go through the example. I will not go with the example. Okay. So now let's talk about the what kind of styling और इन व्हाट आर द वेज जिनकी मदद से आप अपने वेब पेज में स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो देर आर एक्चुअली 3 वेज टू इन फॉर प्रोवाइडिंग स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन। वन इज you can put your styling information in an external style sheet, okay, and you can import, or you not import will not be a good term, you can link that style sheet with your web page. So that style sheet may be a external one, that means किसी other website पर है, किसी और ने डिजाइन की, आपने उसे सीधा इंपोर्ट कर लिया, तो आप उसे लिंक टैग से अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। या आपने जब अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने अपने ही वेबसाइट का जो स्पेस है वहीं पर विद इन द सेम डायरेक्टरी आपने स्टाइल शीट रख रखी है, खुद अपनी स्टाइल शीट बनाई, CSS फाइल बनाई और उसको आपने लिंक कर दिया। सो दी बोथ आर एक्चुअली एक्सटर्नल काइंड ऑफ स्टाइल शीट। सो एक तरीका तो यह है कि आप अपना स्टाइल शीट अपने वेब पेज में एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऐड करिए विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। So link tag up, we have already seen that you have to specify it in the head section of your HTML page. Okay, so this is called external CSS. So many times we generally use external CSS. Okay, because it offers a good way to modify your styling. So आपकी चूँकि स्टाइलिंग एक सिंगल फाइल में है तो आप आसानी से उस फाइल में चेंज करेंगे एंड एवरी यू आर डन। Now there is another way, you can use internal CSS styling. So in the case of internal CSS styling, what you do, you add style tag within your web page, within the header. We have seen that certain examples we have seen. जैसे आपने देखा कि हमने वेब पेज के अंदर जैसे स्टाइलिंग की हुई है। लेट्स सी, दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें आपने एक्सटर्नल स्टाइलिंग की है। सो दैट मीन्स आपकी स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल फाइल में और आपने लिंक टैग से उसको ऐड कर दिया। एंड दिस इज हाउ यू हैव स्पेसिफाइड। इंटरनल में आप देखेंगे कि आपने क्या किया, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग ऐड किया और उसमें स्टाइलिंग कर दी। सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्टाइलिंग। ठीक है, सो आपकी जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन है विद इन वेब पेज है। देन देयर इज थर्ड वे, दैट इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइलिंग
or inline style. So in case of inline style, what you do when you एड एन एलिमेंट इन योर वेब पेज, तो एलिमेंट जब आप जहां आपने स्पेसिफाई किया वहीं पर आप स्टाइल इन्फॉर्मेशन स्टाइल प्रॉपर्टी की मदद से स्पेसिफाई कर देते हैं. सो लेट मी शो यू इफ एग्जांपल इज देयर. ओके ओके, सो दिस इज द वे. दिस काइंड ऑफ स्टाइल इज नाउन एज इनलाइन स्टाइलिंग. सो आप देख सकते हैं यहाँ आपने एक लेट से हेडर ऐड किया, एक सॉरी H1 हेडिंग ऐड की है बॉडी में, और आपने यहीं पर स्टाइल इक्वल टू लिख दिया कलर इक्वल टू कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर. ओके, एंड सिमिलरली एक पैराग्राफ के लिए आपने लोकल स्टाइलिंग कर दिया. सो दिस इज द स्टाइलिंग दैट इज कॉल्ड इनलाइन स्टाइल. ओके, सो इनलाइन स्टाइल जनरली आपको केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि इनलाइन स्टाइल जो है हायर प्रायोरिटी की होती है और ये बाकी स्टाइलिंग को ओवरराइड कर देती है. सो अगर आपने स्टाइलिंग की है तो एक्सटर्नल सीट में भी स्टाइलिंग है पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए, और आपने पैराग्राफ में इनलाइन स्टाइलिंग भी कर दिया है, तो एक्सटर्नल सीट स्टाइलिंग जो है उसका उस पैराग्राफ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्टाइलिंग इनलाइन होगी दैट इज हैविंग प्रेफरेंस. ओके, वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट जब आप जो वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे आपने फॉन्ट साइज और ये मार्जिन स्पेसिफाई किया, तो आप समटाइम्स इस तरीके से लिखते हैं 20 px, तो आपको बीच में स्पेस नहीं देना है. ओके, यू शुड रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन. ओके, सो whenever you are doing styling you should remember that your stylings have some cascading order. So जो local styling है वो preference लेती है. 1 minute. ओके, सॉरी बच्चे आ गए थे. सो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको स्टाइलिंग करते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो इनलाइन स्टाइल है दैट इज हैविंग हायर प्रायोरिटी. तो इनलाइन स्टाइलिंग बहुत रेयरली आपको यूज करना है, क्योंकि समटाइम्स आपकी ये जो ना अदर स्टाइलिंग्स को ओवरराइड कर देती है. One minute. Now there is a cascading order in the styling sheets. You can see that these are the cascading order means the priority. What are the priority values for different kind of styling? So you should remember that inline style having highest priority. Then second priority is external and internal style sheets. Now sometimes it may happen that you have also added one external style sheet and you have also specified some style information in your header. ओके, सो इस केस में याद रखना है आपको जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन आपके बाद में रीड होती है दैट विल बी एप्लीकेबल. सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट्स हैविंग सेकंड प्रायोरिटी, एंड देयर इज आल्सो समटाइम्स यू कैन स्पेसिफाई द स्टाइलिंग रिलेटेड टू योर ब्राउजर. ओके, समटाइम्स सम स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन यू कैन पुट विद ब्राउजर ऑल्सो. ब्राउजर भी अपनी कुछ स्टाइलिंग स्पेसिफिक रखते हैं और यूजर्स उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सो ब्राउजर की जो स्टाइलिंग है वो सबसे बाद में यूज होती है, दैट इज हैविंग लास्ट प्रायोरिटी. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दीज स्टाइलिंग ऑर्डर्स. नाउ देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट यू कैन यूज फॉर स्टाइलिंग. Okay, so these properties I will not go into the details of these properties. I will just read out or those properties that you can specify for different elements like background. This is a shorthand जो आप background के लिए इस्तेमाल करते हैं. Then background attachment, background clip, background color. नाम से ही पता चल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए है. background image, position, size and so on. ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, इमेज रिपीट होगी या नहीं होगी या इमेज फिक्स रहेगी, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें. सो यू कैन गो थ्रू इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़. देन देर आर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द बॉर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स. बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ में आपका बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कैसा होगा, बॉर्डर बॉटम कलर क्या होगा, स्टाइल क्या होगी एंड सो ऑन. सो बॉर्डर रिलेटेड लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर, जिनसे आप बॉर्डर्स कैसा दिखाई देगा आपके एलिमेंट्स का, आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं. Okay, similarly you have also properties to set margins. Okay, एलिमेंट्स जब आप एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट को पुट करते हैं तो आपको पैडिंग और मार्जिन भी सेट करना होते हैं. मार्जिन प्रॉपर्टीज है.
So I will tell you what is the meaning of margin and padding and all that. Let's come back to this slide. Okay, so this is actually a CSS box model that actually elements followed. जब आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर पुट करते हैं, then this box model is applicable. So suppose first you will have your content there. कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस रहेगा आपका, सो सपोज दिस इज द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट, लेट्स से दिस इज अ बटन, बटन के बारे में बात कर लें. सो यू आर बटन, बटन में आपका एक लेवल आप रखते हैं, सो लेवल विल बी द कंटेंट. देन ये बटन के बाद ये किसी बटन के पास एक बॉर्डर होगा, ठीक है, बटन विल हैव इट्स ओन बॉर्डर. तो ये जो कंटेंट है आपका, ये कंटेंट के बीच में आपको पैडिंग कुछ रखना पड़ेगी. जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा बटन जब आप लिखते हैं तो टेक्स्ट सेंटर में आता है. दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि बॉर्डर की बाउंड्री से ऊपर के जाके टेक्स्ट चला गया है. ओके, लेट मी शो यू इफ सम बटन इज देयर इन दैट पेजेस. यू कैन सी दिस इज द बटन. हाँ, नाउ ये बटन में आप, इफ यू आर एबल टू सी, दिस इज द कंटेंट ऑफ द बटन, और आप देख सकते हैं ये बटन का बॉर्डर है, ठीक है. नाउ बटन के बॉर्डर में आप देख सकते हैं ये कंटेंट और इसके बीच में एक गैप है. सो इस गैप को आप कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो ये जो कंट्रोल है दैट इज कॉल्ड पैडिंग. ओके, एंड पैडिंग के बाद नाउ कई बार क्या होता है, आपका जो एक्सटर्नल एलिमेंट है उससे कनेक्शन हो सकता है. एक बटन किसी बॉक्स और बॉक्स के अंदर हो सकता है, या एक एलिमेंट दूसरे बॉक्स के अंदर हो सकता है. तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो क्या होगा, समटाइम्स जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के लेफ्ट में मार्जिन होता है या राइट में मार्जिन होता है, तो वो मार्जिन आप यहाँ होता है. तो आप मार्जिन, पैडिंग को और बॉर्डर कैसा दिखाई देगा, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को विद द सर्टेन प्रॉपर्टीज़ रेगुलेट कर सकते हैं. सो पैडिंग के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं. सो बॉर्डर के लिए तो बॉर्डर स्टाइल और ऑल दैट है, यू कैन कंट्रोल द बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़. नाउ मार्जिन प्रॉपर्टीज़ में आप, एक तो ऑप्शन होता है आपके पास कि मार्जिन के लिए आप ऑटो कर सकते हैं. ऑटो का मतलब अपने आप ब्राउजर कैलकुलेट करेगा मार्जिन कितना रखना है. आप मार्जिन की लेंथ बता सकते हैं कि मार्जिन कितना होना चाहिए बॉर्डर और टेक्स्ट कंटेंट के बीच में, सॉरी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में मार्जिन कितना होना चाहिए. तो आप पिक्सल में, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर में स्पेसिफाई कर सकते हैं. परसेंटेज में भी आप मार्जिन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल एलिमेंट है उसके जो आप स्पेस का कितना परसेंटेज जो है मार्जिन रहे, यू कैन स्पेसिफाई दैट. और दूसरा, अगर आप इनहेरिट करते हैं मार्जिन की जो प्रॉपर्टीज, इनहेरिट की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. तो इनहेरिट का मतलब है कि जो एक्सटर्नल एलिमेंट के अंदर जो आपका एलिमेंट है, तो उसमें जो मार्जिन की प्रॉपर्टीज और अदर प्रॉपर्टीज सेट है वो वहीं से इनहेरिट कर ले एज इट इज. दैट मीन्स पेरेंट एलिमेंट से हायर इंपोर्ट कर ले या इनहेरिट कर ले, ठीक है. सो मार्जिन के लिए आप मार्जिन में बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, ये मार्जिन आप सेट कर सकते हैं. तो इन मार्जिन को आप अलग अलग तरीके से, इन 3 तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं. ऑटो रख सकते हैं, तो इसमें आप फिर कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, ब्राउजर विल डिसाइड. या आप मार्जिन को लेंथ या परसेंटेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप इनहेरिट रखते हैं, तो जो आपका करंट एलिमेंट जिसके आप लिए मार्जिन सेट कर रहे हैं, तो वो जिस एलिमेंट के अंदर है, दैट मीन्स पेरेंट एलिमेंट, कंटेनर जो एलिमेंट है, वहाँ से मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ वो डिराइव कर लेगा, ठीक है. सिमिलर यू कैन ऑल्सो डू द पैडिंग. पैडिंग में भी पैडिंग, टॉप की पैडिंग कितना रखना है, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, बॉटम पैडिंग कितना रखना है. जैसे ये टॉप पैडिंग होती है, ये लेफ्ट राइट पैडिंग है, बॉटम पैडिंग है. ये वाली पैडिंग बॉटम पैडिंग कहलाती है. दिस इज योर, ये जो स्पेस आप दिख रहा है, दिस इज टॉप पैडिंग, दिस इज लेफ्ट पैडिंग, दिस इज राइट पैडिंग. ये आप गैप जो देख रहे हैं, सो ये पैडिंग आप पैडिंग प्रॉपर्टीज़ की मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है. पैडिंग, टॉप, और इनकी वैल्यूज आप लेंथ के फॉर्म में देंगे, मतलब कितने पिक्सल की पैडिंग हो, या आप कितने पॉइंट्स की पैडिंग हो, सेंटीमीटर की पैडिंग हो, या आप परसेंटेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो एरिया है उसका कितना परसेंटेज पैडिंग ले, या फिर आप जो आपका एलिमेंट है वो पेरेंट एलिमेंट से पैडिंग ले ले, अपने आप इनहेरिट कर ले, तो इनहेरिट प्रॉपर्टीज आप कर सकते हैं. सिमिलरली हाइट, वेट भी आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज योर CSS मॉडल, ठीक है. CSS में हम इतना ही करेंगे, और आप बाकी चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू दीज एलिमेंट्स, ठीक है. ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके, मैंने बहुत ज़्यादा इनको डिटेल में आपको डिस्कस नहीं किया है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है. यू कैन गो टू दैट वेबसाइट, और यहाँ पर आप ये जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हो इनके साथ आप प्ले करके यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. ओके, हालांकि CSS में अपने आप में पूरा जो है ना एक लैंग्वेज है, इट विल टेक टाइम, एंड वी डू नॉट हैव दिस मच ऑफ टाइम
to devote for this. Okay, so CSS में हम इतना ही करेंगे. So let's close for today.